Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and on every story that matters to you, the buck stops here. It's a controversy that began 5 days ago during the Snan for Mauni Amavasya at Prayagraj. But now it has exploded into a face-off that has the potential to completely rewrite political equations, not just in Uttar Pradesh, but perhaps the entire country. Yes, this is not just Kamandal versus Kamandal. It is a deeply political fight, and one doesn't even know who is in which side. People being forced to pick sides, and that is the political impact that we'll be talking about. The main characters of this controversy are both Hindus, both saints, both men in saffron. On the one side is Shankaracharya Avimukteswaranand, and on the other is Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath himself. So far, it was Avimukteswaranand who had been on the warpath, calling the UP CM names like Akbar and Aurangzeb. Today, the CM responded, but without taking any names. Speaking in Haryana, he warned against Kal Nemis, demons who work to damage Sanatan while hiding behind Dharma. Listen. कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। Yogi Adityanath may not have taken names, but his message was quite clear, directed at people who try to divide Hindus and believers in the name of Dharma while working against the interests of those very Hindus. That's why the reference to Kal Nemi, a shape-shifting demon who in fact was dressed like a seer in saffron, but he wanted to stop Lord Hanuman when he was going to get the booty that would rescue Lakshman when he had fainted. In fact, this Kal Nemi attack was preceded by the UP administration's actions, which made it absolutely clear that far from stepping back, this time Swami Avimukteswaranand is going to be given no quarter by the UP government. In the last 48 hours, the Shankaracharya has been served 2 notices already. First, he was asked to explain how he is using the title of Shankaracharya. Now, he has been given the second notice. In that notice, he was questioned on allegations that he took his palki in an area where vehicles aren't allowed at the Sangam in Prayagraj, and that his followers broke barricades, creating a stampede-like situation. The notice says that if he doesn't give satisfactory answers, the state will take away his land, the land and facilities provided to him at the Magh Mela, and perhaps ban him from the Mela Kshetra altogether. This naturally hasn't just raised the hackles of Avimukteswaranand even further, but has also given the opposition an opportunity. An opposition which, by the way, has united over the last 5 days behind Avimukteswaranand as the ultimate bearer of the torch for Hinduism. And that opposition is now further hammering the anti-Hindu narrative against the BJP and Yogi Adityanath. उस सम्मान को फिर से रिस्टोर कर दें, उस सम्मान को रिस्टोर कर दें, बात खत्म हो जाएगी। सम्मान रिस्टोर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नोटिस पर नोटिस देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी माने अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है, और ज़्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। दूसरा नोटिस जो कि बैक डेट में है, उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आपका जो आपको साधन दिए गए हैं वापस ले लिया जाए, मेला क्षेत्र में एंट्री पर रोक लग जाए। भाई आप वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने क्यों दिया। क्या उस समय आपकी अकल चली गई थी घास चरने के लिए? उस समय आपने गलत निर्णय ले लिया या अब गलत निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने दिया है और आप उसको बिना माघ मेला पूरा हुए वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब एक निर्णय आपका गलत है, या तो देने का निर्णय गलत है या तो लेने का निर्णय गलत है। तो आपको बताना होगा
कि आप गलत निर्णय क्यों लेते हैं, इतने बड़े प्रशासन होकर के आपने गलत निर्णय क्यों लिया। महाराज जी, कल भी एक स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, पिछले स्नान पे तमाम विवाद हुआ। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालुओं में यही इच्छा जानने की है कि क्या कल स्नान शंकराचार्य जी करेंगे। बात यह है कि हम मौनी अमावस्या का स्नान कर ही नहीं पाए, तो अभी तो हम मौनी अमावस्या करके वापस अपने शिविर में गए ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जब तक योगी जी को स्वयं आके माफी मांगनी चाहिए उनसे। योगी मुख्यमंत्री हैं और संत हैं आप, तो संत का सम्मान करिए। जो उनकी चुटिया पकड़ के जिन अधिकारियों ने खिंचवाया, जिन वेदवाटी बच्चों को मारा, गेरुआ वस्त्र का जो गेरुआ वस्त्र आप पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र को फड़वाया आपने, जाकर आकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी से साक्षात दंडवत प्रणाम करके माफी मांगिए। And that brings us to the big questions on which the buck stops here tonight in this Kamandal versus Kamandal fight. Will the electoral race become extremely tight? Has the BJP stepped on a hornet's nest by issuing these notices to Swami Avimukteswaranand within 48 hours? Is this fight less for dharm and more for politics? And finally, who is this Kalnemi that Yogi Adityanath spoke of? Joining us on the debate today, we have Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party, political analyst, advocate Nikhil Jain, and Ashutosh Dharmguru, Acharya Vikramaditya, political analyst Karan Verma. And my first question is to author Shantanu Gupta, who in fact has authored a book on Yogi Adityanath. Who is this Kalnemi? And more importantly, Shantanu Gupta, it was Yogi Adityanath who had famously coined that slogan, "Batenge to katenge." And now the Sant Samaj, Hindu voters as a whole are bata hua. I lost your voice for the last part. Maybe you get the check. Am I audible? Yes. Yogi Adityanath had said batenge to katenge, Okay, but I can't hear you. Between Yeah. Swami But I'll anyway continue. Mukteswaranand and Yogi So Adityanath see, is only serving to divide the Hindus. Bat rahe hain sare. no, I think that's not the case. So whom Yogi Adityanath called Kalnemi, I think one has to ask only Yogi Adityanath, but I think he's referring to the various Kalnemis within political parties or a lot of mafias that he's destroying from last 8.5, 9 years so efficiently, right? I think the case in case, I think we all have debated from last 2 days that there are two things to it. That one thing that he was only stopped 50 meters away, and like a sant, like a Sayyid sant, he could have walked with this team. Second thing, his title of Shankaracharya is debated. That's not a new thing. It's debated. Everyone knows that. And there are three elements to the his Shankaracharya title. First is his Patta Abhishek never happened. Second thing, all the three other Pithas Shankaracharya never endorsed him equivocally. Third thing, when it went to the court in 2020 and the verdict came in 2022, two-judge bench, Gavai and Mr. Gavai and Mr. V.B. Nagaratna, they said that their title is debated. So he never got the title. Pattabhishek has never done formally. So they just said you can't formally use the Shankaracharya title. So that's all. I think, yeah, like I said, son, he could have walked. Many other saints walked that 50 meters. And this is on the day of Moni Amavasya. Then when we all know that in the last Kumbh, what happened on the Moni Amavasya day. So just as a safety security, you just walked. That's all. No, that is fine. So I think he was putting the security. You know, the chief minister won't say this just casually. And he himself has put it out on his social media handle. So who is this Kalnemi, Shantanu Gupta? No, whatever. इसी की तरफ तो इशारा होगा ना उनका. In the middle of this entire fight, if he refers, and you know, Kalnemi का अंत में तो उसका वध भी हुआ था ना. So is this also a very tacit message to Swami Abhimukteswaranand or whoever this Kalnemi is कि आपका अंत भी निकट है? No, I'm saying whatever Yogi Adityanath says goes to his Twitter handle. It's not only this handle. He attended multiple events during the day, and all are in the Twitter handle. Both are in his Twitter handle and the office Twitter handle. So as I said earlier, I think there are a lot of Kalnemis in political parties and in Samaj, and he's ending them
politically also in 1722, and he's also ending the mafias also. He's ending various Interesting. So Kalnemis. Ashutosh, this is not about Everyone Swami can take a throne back. Abhimukteswaranand. Kalnemi Swami Abhimukteswaranand nahi hai. He's generally talking anyone who is not following the any parampara of Bharatiya culture, Sanatan, he's mentioned Right. to all of them. It is incidental that Kalnemi happened to be a Mayavi Rakshas who dressed up in saffron. वो साधु का वेश धर करके आ रहे थे. वो सिर्फ coincidence है. Any reference, जैसे कि वो नीचे होता है ना, there is a disclaimer. Any reference to anyone living or dead is not there. This is a fictional character. It's to everyone who is behaving like Kalnemi. Okay, everyone who's behaving like Kalnemi, no one in particular. Ashutosh. No, I think we should also be reminded of the statement made by Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister, who directly reports to the Yogi Adityanath. Not once, but twice in a day, questions were asked about the Shankaracharya controversy, and he said, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो उनका विरोध है उसे संगम में स्नान करके खत्म करें. किसी भी संत का अनादर करने का हमारे यहाँ कोई नहीं है. अगर किसी ने ऐसा किया है तो जांच करके कार्रवाई करेंगे. This is statement not once but twice in a day was given by Keshav Prasad Maurya. And then you juxtapose this with Yogi Adityanath, two notices. One, कि you are not शंकराचार्य. आप बताइए आप शंकराचार्य का टाइटल लगा के क्यों घूम रहे हैं? दूसरी बात, क्यों ना आपके ऊपर मेला परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य जी के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रही है, उनको अपमानित करने का काम कर रही है. दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर किसी ने उनके साथ अनादर किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. These are the two facets of the same coin. Now the issue is who is right, and why the BJP top leadership is silent on the issue. Why the RSS leadership is also silent on the issue. Nobody has come to support Yogi Adityanath. If anybody you know a statement except Indresh Kumar's statement, then please correct me if I'm wrong. And I think this is the whole crux of the crisis. That today Yogi Adityanath on this particular issue finds himself lonely, not getting support from the BJP leadership in a state and outside. And in fact, one of the cabinet minister, I'm forgetting his name, 2 days back has also criticized whatever happened with Shankaracharya. So Sadhvi Niranjan Jyoti, she has said, as a member of parliament, she said कि गलती दोनों तरफ से हुई है. यानी कि अभी बीजेपी और सरकार भी बटी हुई है. 5 seconds. Even the Dwarka Pith Shankaracharya, Sadanand Saraswati ji, Swami Sadanand Saraswati, has come out openly in favor of Swami Shankaracharya Abhimukteswaranand. So one of the Shankaracharya is also in favor with Swami Shankaracharya Swami Abhimukteswaranand. तो यानी कि इसमें अकेले पड़ गए हैं. बताइए, स्वामी विक्रमादित्य गलती कर दी है. ये कालनेमी, ये जो फ्रंट फुट पर अटैक किया है, अब वोटर तो बटे हैं, हिंदू बटे हैं, संत समाज बटा है, सरकार भी बट गए हैं, बीजेपी बटी हुई है. आचार्य विक्रमादित्य, सरकार कोई बटी हुई नहीं. सरकार के अनुसार से हमको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि कालनेमी कौन है. हर एक को पता है किस प्रकार से कालनेमी कार्य कर रहे हैं. सामने किसी और को रखकर मुखौटा पीछे किसका है वो सबको पता है. किन्होंने संतों पे गोली चलाई थी, किन्होंने संतों की पिटाई करी थी, इस देश के इतिहास में वो बातें दर्ज है और हर कोई व्यक्ति जानता है किस प्रकार से खेल किया गया है और किस प्रकार से कौन कौन अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कार्य कर रहा है. लगातार 2015 की घटना देखें, कार सेवकों पे हमला देखें, किन्होंने किया, कौन कह रहे थे कि एक के बाद और भी आएंगे तो उनको मारेंगे. तो आप कह रहे हैं कालनेमी अखिलेश यादव है. कभी क्षमा नहीं मांगी. कालनेमी अखिलेश यादव है जिनका जिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ. चाहते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो जो भारत के धर्म के खिलाफ कार्य कर रहा है, अपने स्वांता सुखाए के लिए कार्य कर रहा है, वो सब कालनेमी है. मुख्य उद्देश्य भारत की प्रगति, देश की प्रगति, सनातन की प्रगति में जो भी विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है, कालनेमी वही है.
मुझे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता आके टीवी पर बोलते हैं कि शंकराचार्य का सम्मान करो, जैन सरस्वती का सम्मान किसने किया था? अनुराग भदौरिया, खेल में किसने डाला था? सारा खेल किसने, किस प्रकार से? The message was also as much to all of those people who are trying to prop up Abhi Mukteshwaranand and are firing off his shoulder. अनुराग भदौरिया, कालनेमी वो लोग भी हैं जो कि एक तरफ पूरा अपना वोट कंसोलिडेट करना चाहते हैं एआईएमआईएम के साथ टाई अप करके, और दूसरी तरफ हिंदुओं को बांटना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। अनुराग भदौरिया, कमाल की बात है। अब देखो, सनातन में संत समाज का तो बहुत सम्मान है। संत समाज का अपमान किसकी सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान कहां हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उनके बटकों को किस तरह से चोटी पकड़ के घसीटा गया, उनको पीटा गया, किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी 2015 में किसने करी थी? डंडा किसने चलाया था? बीच में नहीं बोला। संतों को डंडा किसने मारा था? पद्मजा जी, ऐसे डिबेट होगी तो बता दीजिए। हत्या किसने करी थी? ऐसे डिबेट की हत्या किसने करी थी? मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया आपने। मांगी थी कभी? कभी बीजेपी के प्रवक्ता से क्या मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्रभु शांति रखिए, शांति शांति गलती हुई शांति। अब मैं डिबेट कर लूं पद्मजा जी? मैं नहीं करूंगा ना, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि अनुराग भदौरिया, मायावी राक्षस की बात हो रही है ना, अगर कालनेमी की बात हो रही है तो ये मायावी हुआ कि एक वक्त पे कोई कहता है कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता है, जो कोई कहता है कि भाई लाठी चार्ज कर दो, जो कहता है कि भाई अगर हमें और भी गोली चलानी पड़ती और लोगों को मारना पड़ता तो हमें उस पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता। अगर जब राम भक्तों की बात की जा रही है, कार सेवकों की बात की जा रही है, और आप संत समाज के सम्मान की बात करें, तो थोड़ा सा तो ये मायावी राक्षस वाला जो एल्यूजन है वो फिट बैठता है ना कालनेमी का। देखिए, अगर आपको डिबेट करानी है, मुझे बुलवाना है, तो हम तो किसी के बीच में नहीं बोले। तो मायावी लोग जो हैं, जो इस तरह के बिहेव कर रहे हैं, वो अपने आचरण को सही करें तो डिबेट हो पाएगी ना। हम तो किसी के बीच में नहीं बोले। सवाल ये है कि जिस तरह का जो सरकार के अंदर में जिन संत समाज का अपमान हो रहा है, अब संत समाज का अपमान हो रहा है, मतलब राष्ट्र में राष्ट्रवादी असली कौन है? जो सनातनी होगा। सनातनी कौन होगा? जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, जो न्याय की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, संतों का सम्मान करेगा। और वसुदेव कुटुंब की बात बोली जाती है। हम तो आज संत समाज परेशान है तो संत समाज के साथ खड़े हैं और डंकी की चोट पे खड़े हैं। समाज में कोई विपक्ष के दल के नेता होने के नाते हम लोग जब भी समाज के अंदर अन्याय किसी वर्ग के साथ होता है, हम डट के खड़े होते हैं। खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा था, बच्ची जेल में गई, तब खुल के खड़े हुए। बीएलओ की मौतें हुई, उसमें भी हम खुल के खड़े हुए। जब AQI की बात होती है तब भी खुल के खड़े होते हैं। किसानों की बात होती है तब भी खुल के खड़े होते हैं। यहाँ हेल्थ व्यवस्था पे कोई गड़बड़ाती तब भी खुल के खड़े होते हैं। शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाती तब भी खुल के खड़े होते हैं। आज संत समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो खुल के करते हैं। संतों की हत्या, कार सेवकों की हत्या भी खुल के करी थी। किस बात की थोड़ी करी थी? गोली सिर पे मारी थी, कौन है भाई? चारों तरफ से रोक के मारी थी। अयोध्या की समस्त गलियों को रोक के, बंद करके, चारों तरफ से घेर के मारी भाई। प्रभु, सरयू के अंदर लाशें बहाई थी, वो भी खुल के ही बहाई थी ना। अरे भाई, नाम लिख ले। नहीं, मुझे बताइए ना, नाम लिख पाते हो? संतों की लाशें सरयू में बहाई थी, बोरी बांध के डुबोई थी। किसने डुबोई थी? खुल के डुबोई थी ना भाई। देखिए, आप भले से अपना पूरा ये रिपोर्ट कार्ड दे दे अनुराग भदौरिया, बट द मैसेज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टुडे इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आप चाहे जितना भी छुप लें, चाहे आप जितना भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सामने खड़ा कर ले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी जो मंशा है, आपके जो इंटेंशंस हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। और ऐसे लोगों को, वही उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं है आपके सगे। करवा लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा डिबेट, ऐसे नहीं होगी। अनुराग जी, नहीं आया हूं मैं अपनी बात करनी। नमस्कार, आप अपनी बात कीजिए ना, अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। सॉरी पद्मजा जी, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसी डिबेट में। नहीं करता। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सीधा सीधा सवाल है, इस पूरी डिबेट में कालनेमी कौन है आपके हिसाब से? कराएंगे तो मैं अपने अगर आप डिबेट करवाइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। चिल्ला चिल्ली करवानी है तो आपकी कालनेमी कौन है इसमें? इस पूरी डिबेट में कालनेमी है कौन? देखिए, मैंने क्या बोला, हम सनातनी और राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिसके किसी के दिल पे चोट पहुंचे। हम बोलोगे अगर हमसे गलती हुई थी तो हमने माफी भी मांगी थी, याद होगा आपको। और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब उनपे अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे पुलिस ने कार्रवाई की थी तो पुलिस के अधिकारियों को भी डांटा और माफी भी मांगी। यही होता है सनातन में। सनातन में, धर्म में जो माफी मांग लेता है
जो क्षमा याचना करता है उसको क्षमा कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन उस यहाँ वक्त उन्होंने नहीं यहाँ पे डांटा था। अन्याय हुआ संतों ये के साथ। फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकला था। जब वो पेश नहीं हुए उनको भगोड़ा घोषित किया गया था। ही वाज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर। आपको शायद पता नहीं, मैं कह रहा हूँ माफी मांगी, अब आप जबरदस्ती डिबेट कर रहे हैं। बहुत बाद में मांगी सर। अरे छोड़िए, माफी सुन लीजिए मेरी बात। और उनको माफ भी किया स्वामी जी ने, सरकार में रहते हुए कभी नहीं मांगी। माफ भी किया। अरे यार, अब मैं कह रहा हूं माफी मांगी, उसमें अधिकारियों की भी डांट लगाई। सुन तो लीजिए, आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो नहीं होता है ना। लेकिन आज शंकराचार्य जी वहां पे बैठे परेशान है, संत समाज है जिसका हम लोग सब सम्मान करते हैं। उनके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी है। मान लो शंकराचार्य नहीं भी है, संत तो हैं, संत का तो सम्मान होना चाहिए। संत का सम्मान दूसरे संत नहीं कर पा रहे, टीवी डिबेट बैठ के हल्ला मचा रहे हैं। अरे हम तो संत समाज की बात कर रहे हैं, अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। तो इसके मतलब मुखौटा कौन लगाया हुआ है चेहरे पे जो हमारे साथ डिबेट कर रहा है बैठ के? ये आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य। हम संत समाज के साथ खड़े हैं और संत समाज के डट के खड़े हैं। आप नहीं खड़े हो। जो आपको पसंद है संत, उस समाज के साथ खड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य के साथ खड़े हैं। मेले के अंदर हम सनातनी मेले के अंदर पूरी घटना को बताइए ना, पूरी घटना बताइए भदौरिया जी, पूरी घटना क्या हुई थी? अगर किसी गलत रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, उसको वहां पर खड़े हुए किसी पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास किया, सही रास्ते में डालने का प्रयास किया, तो उसकी बात कर लेंगे ना हम लोग। हम संत समाज की बात हम आपस में कर लेंगे। आप क्यों हवा दे रहे हैं? आप हवा दे रहे हैं ना, आप आग लगाना चाह रहे हैं, वहां पे आपकी पार्टी आग लगाना चाह रही है। भाई हम अपनी समस्याओं को समझा लेंगे। मुझे बताइए, संत मंडल की बात है, संत मंडल का आपस का झगड़ा है, संभाल लेंगे। आप उसको जबरदस्ती हवा देना चाह रहे हैं, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं। मुझे बताइए। अरे हम संभाल लेंगे ना भाई, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप संभाल लेंगे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज करण वर्मा, far from dialing down the tension, was there really any need to go on the offensive against Abhi Mukteshwaranand? Within the last 48 hours, 2 notices have been issued to him, and the latest notice says we are going to ban you forever from the Mela Kshetra. Now, there are many people who are very uncomfortable about this. You've got, like Ashutosh just said, you've got people within the BJP. Keshav Maurya has just spoken a while ago and he said, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं. You had Sadhvi Niranjan Jyoti saying there were mistakes made on both sides. You had people who are in saffron who are saying that listen, there was no need for a lathi charge. You have Aniruddhacharya saying there was no need for a lathi charge. 10 सेकंड पद्मजा जी, 10 सेकंड। अरे सर, बट 10 सेकंड ही बोलिएगा, फिर आप सबके बीच में बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि यू डोंट वांट टू बी इंटरप्टेड। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी सनातनी नहीं है जो उन्होंने उनको भगवान शंकराचार्य बोल दिया? उनको भी सनातनी नहीं मानेंगे क्या? उनको भी अपमान कर दीजिए, उनका भी। करण वर्मा बोल दिया, उनके चरणों में प्रणाम। अब आपने उनको सर्टिफिकेट दिया है केशव मौर्य को, तो वो पक्का कट्टर सनातनी होंगे। जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो योगी नहीं है, आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो केशव मौर्य सनातनी के भी सनातनी। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूं, मैं सनातन की बात कर रहा हूं। अरे सर, आपने तो दिया है ना सर्टिफिकेट। यू सेड दैट आचार्य विक्रमादित्य इज नॉट अ सनातनी, बट अनिरुद्ध, बट people who are supporting Abhi Mukteshwaranand, they are Sanatanis. राम भद्राचार्य सनातनी नहीं है क्योंकि उनको अभी मुक्तेश्वरानंद ने अंधा बाबा बोल दिया। Can I speak, Padmaja? There are people who today are calling Ram Bhadracharya sarkari dalal. Pardon my language, but this is the kind of language being used for Ram Bhadracharya. There are people who are political figures who are insulting him, who are saying वो तो अंधा बाबा है, वो योगी का आदमी है, including Abhi Mukteshwaranand himself. But anyway, let Karan Verma come in. What was the need to deepen the offensive? No. And you've given a political issue to the Samajwadi Party and Congress. It needs to be called out here. No, I don't think they'll not be able to get any mileage out of it. Padmaja, कहा जाता है ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. I think that is what is fitting for Anurag Bhadoria ji's party, and it's symbolic at many levels. They are the ones who've aligned with people who've called Sanatan dengue malaria. तो मुखौटा किसने पहन रखा है जो आज साधु समाज और इनकी बात कर रहा है? मुझे तो आंखों से आंसू टपक रहे थे जब अनुराग जी बोल रहे थे हम सनातनी हैं। और अच्छी बात है अगर हो, काश ये बात सच हो। खैर, पद्मजा, झूठ बोल रहे हो, कोई आंसू नहीं टपक रहा, नाटक कर रहे हो। कहाँ है आंसू? दिखाओ, दिखाए आंसू, दिखाइए। बात सुन लीजिए, आंसू दिखाइए। झूठ बोल रहे हो टीवी डिबेट पे। आंसू कहाँ है? कहाँ आंसू निकल रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अनुराग जी का आंसू वाला फैक्ट चेक आप मिलिएगा तब तो आपको दिखाऊंगा। Please don't interrupt now when you get so offended. क्या हो गया ये इनको? झूठ टीवी डिबेट पे बोल रहे हो सामने सामने। Okay, please, Anurag Bhadoria, please 1 minute of silence. Let him complete his point. Let him complete his point. आंसू टपक रहे हैं, कहाँ आंसू टपक रहे हैं? अभी वो दिखाएंगे आपको, but let him speak now. अरे भाई टपक रहे हैं, क्या करें? आप रुला रहे हैं, क्या करें? खुशी के आंसू हैं. Now, Padmaja, it needs to be called out here, with all due respect.
Nobody is above the law. Nobody gets an unfettered license to, and if you speak something, it will have consequences. Now, Avi Mukteswaranand ji, with all due respect, what all has he said in the last year and a half? Apart from taking a dig at Ram Bhadracharya ji, which was, I think, very insensitive, कि इनको दिखता भी नहीं है ठीक से, ना ये समझ पाते हैं, ना ये देख पाते हैं. Then for him to comment on Murshidabad and say it's not a Hindu-Muslim issue. Then he went on to say Article 370, I would love to see Article 370 be restored. Now we'll have to, talk it out with him, and one will have to tell him that, Article 370 has made it possible for so many of the Dalits, so many of the Pichras to get reservation, to get rights, who are not treated well in Jammu and Kashmir. So if you are going to pass these statements, you don't get a free run. It's as simple as that. Having said that, nobody needs to resort to any sort of violence, but you also do not have unfettered access. If you do not have a permission, we know what happened last year on Mauni Amavasya. अनुराग भदौड़िया जी, आप लाइन से बीच में बोल रहे हैं, वही आपके साथ है. 100 चूहे खा के बिल्ली को चली. पर preaching others and you constantly. Can I please have 30 seconds of silence? Finish his point. I'm coming to you, Mr. Bhadoria. तो 2015 में आपने किया बहुत गलत था. वो 2015 में जो आपने किया बहुत गलत था, मान रहा हूं मैं, संत समाज के साथ. और जो गोलियां चलाई थी कार सेवक्स पे और बोला था 16 मार दिए, अगर 30 भी मरवाने होते तो मैं हिचक ना करता. कह दीजिए इंडिया अलायंस में डीएमके के साथ नहीं, सनातन इतना है, सनातन को डेंगू मलेरिया बुलाते हैं. आशुतोष, कांग्रेस वाले जो प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक डिजीज की तरह है. तोड़ दीजिए आज अलायंस उनके साथ. Ashutosh, when you speak like a politician, then you will be responded to like a politician, and with the greatest of respect, the responses we are seeing here is, if Avi Mukteswaranand ji speaks like a politician, he will get a political response. Now it's a political first of all, let me correct, let me ask a simple question. Let me ask a simple question. जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनको पद्म भूषण किसने दिया, या पद्म विभूषण किसने दिया? किसने दिया? अब किसको कालनेमी कहूं मैं? मोदी सरकार ने दिया. क्यों दिया? तो क्या जो कार विभूषण मिलने से पाप धुल गए, हत्याओं की एलिगेशन हट गया? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में ना बोले तो अच्छा है. मैं जो कह रहा हूं उसके बाद में आप रिएक्ट करें, मुझे अच्छा लगे. आप बोल रहे हैं कि पद्म भूषण देने से, मैंने आपको मिलने से क्या पाप धुल गए? मर्यादा रखिए. आप भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, बोलना चाहते हैं कि पद्म भूषण शालीनता सरकारी सेवाओं पे मिले, उन्होंने पूरा जीवन लगाया. सरकार ने इस बात मैं भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति से उम्मीद करता हूं वो भगवे का सम्मान करें, लेकिन क्या उसके कारण से विनम्रता का जो हत्याएं करी, कार सेवक हत्या की, वो पाप धुल गए? नहीं, this is a tangential point, right? अगर ये ऐसे अगर बीच में टोकेंगे, मैं डिबेट में नहीं हिस्सा लूंगा. आशुतोष जी, this is a tangential point. नो. अगर ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा. मैं किसी बीच में नहीं बोलता हूं. Let's come back to Avi Mukteswaranand. No, let me complete first. समाजवादी let's see. अभी करण वर्मा ने कहा कि let's call it out. So I am calling it out कि जिन्होंने जिन मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाई, खून की नदियां बहाई, उनको क्यों पुरस्कृत किया गया? क्या इसलिए कि कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलाई थी इसलिए पुरस्कृत किया गया था? तो ये भी तो पॉलिटिक्स है ना. हम इसको क्यों भूल जाते हैं? वो पॉलिटिक्स है. जहां तक जो अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं वो भी तो पॉलिटिक्स है ना. लिखिए जहां तक मुक्तेश्वरानंद जी का सवाल है, तो यही मुक्तेश्वरानंद जी थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी है, जिन्होंने राहुल गांधी को धर्म से बहिष्कृत किया था या नहीं किया था? अभी कुछ दिन पहले की बात है. क्या कहा था? क्योंकि मनुस्मृति हमारा एक पवित्र ग्रंथ है और राहुल गांधी ने उसकी आलोचना की, इसके लिए इनको मैं हिंदू नहीं मानता, इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करता हूं. तो हमारे यहां संतों का स्वभाव ऐसा है, दुर्वासा मुनि हो या फिर विश्वामित्र हो, वो क्रोधित होते हैं तो कुछ भी कहते हैं. और हमारे यहां संतों की कही गई बाणी को अगर पुराणों में देखेंगे, अगर आप कहीं और देखेंगे, उनका बुरा नहीं माना जाता, उनके क्रोध को भी आशीर्वाद के तौर पर लिया जाता है. नहीं सर, बट इफ यू आर टेकिंग अप अ पॉलिटिकल पोजीशन, हो रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ वो पॉलिटिकल पोजीशन लेंगे तो कांग्रेस भी उनको क्रिटिसाइज करेगी. एंड बाय द वे, व्हेन ही सेड दैट अबाउट राहुल गांधी, द कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड हिम व्हेन ही रोट टू द राम जन्मभूमि ट्रस्ट a couple of months ago and said, don't let Rahul Gandhi enter the Ram Mandir, which is wrong, by the way. But Congress criticized him. Now, because it's convenient, the Congress is calling him the Sirmor of Hinduism. How does it work like that? पद्मजा, तो मैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बारे में कहूंगा कि आपने मुलायम सिंह यादव को क्यों पुरस्कृत किया, क्यों पद्म विभूषण दिया, क्यों सम्मानित किया? सर, वो पॉलिटिक्स थी. Then Avi Mukteswaranand is also doing politics, right? And Congress and Samajwadi Party are doing politics through him. या भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिज्म का हिंदुइज्म कहां था?
जब आप मुलायम सिंह यादव को पुरस्कृत कर रहे थे, क्यों किया आपने? कौन सा अच्छा काम किया था? Okay, very quickly, Shantanu Gupta, respond to that. If you have a problem with Avi Mukteshwaranand's politics, you also did politics over Mulayam Singh Yadav. I'm just coming to you, Nikhil Jain. Respond to this. BJP did politics over Mulayam Singh Yadav. Now they can't cry foul. You're muted. Please unmute yourself. Shantanu Gupta. Am I audible? Yes, you are. I'm saying they are totally different topic, that whom the President of India, which gave Padma Shri's Padma Vibhushan, whom are they listing it, and what Avi Mukteshwaranand ji was saying, doing in the morning was said. I think they're totally different topics. Yeah, but if you are agreeing with Swamiji, then you have to agree with everything. He said that PDA Hindu Samaj ko todta hai, then Anurag ji should go and stop the concept of PDA. इन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को हिंदू मानते ही नहीं है, तो ओके देन स्टार्ट बिहेविंग. सो इट्स नॉट दैट आई विल एग्री टू वन थिंग ऑफ स्वामीजी, वन थिंग नॉट. आई विल एग्री टू वन थिंग, व्हाट विल सूट मी, आई विल एग्री विद स्वामीजी. व्हाट विल नॉट सूट मी, आई विल नॉट एग्री विद स्वामीजी. I think that's the moot point. That these are the real Kalnemis. On one day they will be Hindu, one day they will be firing on the Hindus. And these are the real Kalnemis, which Yogi ji was pointed out today. Nikhil Jain. And this is the politics of convenience which Yogi Adityanath was pointing out. You can't change your stand where one day, and by the way, today Rahul Gandhi is in the news because when he was asked about G Ramji bill and somebody told him that it is G Ramji, he said, Kya Gram? He could not take the word Ram. Tomorrow he is not going to the Ram Mandir along with other MPs. So today you are all about, the Congress party is all about the respect of Hindus, the respect of sons, but you can't bring yourself to say the word Ram. You can't bring yourself to go to the Ram Mandir. First of all, Padmaja, the bill that we're talking about is a bill that takes away the rights of rural people in India from the employment guarantee. It does not. You have not read the bill then. You have not read the bill. Shantanu, I did not interject you. I hope you can please extend that courtesy to me. Just pointing out a fault. Just pointing out a fault. Designed in a manner that the scheme will... Shantanu, I did not interject. You said a bunch of things that I did not agree with. That is, let's maintain the courtesy with that. And just a fact check. Just a second, please. Why isn't he going to the Ram Mandir? But go on. What is this, yaar? Shantanu, why do you feel the need to do this pedestrian behavior? I really don't understand. First of all, I had to sit through your whitewashing of what is being done to Hindus here right now under the BJP government. You claim to be a flag bearer of Hinduism, yet you can't see that it is wrong to run bulldozers on mandirs, historic heritage mandirs. You can't see it is wrong to pull seers and their disciples by their hair. You can't see it is wrong to open up a front against a Shankaracharya. You cannot see it is wrong to break down a temple to make parking for the RSS. You cannot see it is wrong. You cannot see it is wrong to ask people to make video games on our kissa kahanis like Mahabharata and Ramayan. This is the Prime Minister. Is this Padmaja? Is this a class 6th rap battle of some sort? No, it's not. I was just waiting for you to finish your very long monologue. Make your point. Can you please ask Shantanu to stop yelling lies? Is it not a fact that Prime Minister Modi said at a public event that हमारी किस्से कहानियां जैसे रामायण महाभारत पे आप वीडियो गेम बनाइए? Is it not a fact that Prime Minister was flying a kite in the caricature of Lord Hanuman? Is it not a fact that demolitions happened at the Manikarnika Ghat? Is it not a fact that disciples of Shankaracharya Swami Avi Mukteshwaranand No temple was demolished on Manikarnika Ghat. Please come to the point. My point is you cannot suddenly become a Kattar Sanatani today and tomorrow refuse to go to the Ram Mandir. That's my limited point, Nikhil Jain. No. And I will answer on Nikhil Jain, and I will answer on that limited point. Padmaja, you don't have to agree with every single point that a person makes in order to respect them. I disagree with you quite often. You disagree with me quite often. Doesn't mean that I start becoming disrespectful to you or you to me. And that is what the key point is, that when the Congress raised an objection to what Swami Avi Mukteshwaranand ji said in context to Rahul Gandhi, that was a disagreement. That doesn't mean the Congress government in Karnataka starts sending out notices to him and asking him, Kagas dikhao. Ye log ghuspaiti
जातियों के कागज मांगने आए थे, आज ये शंकराचार्यों के कागज दिखा रहे हैं. नाउ माय फ्रेंड्स फ्रॉम द बीजेपी और द प्रॉक्सी बीजेपी स्पोक्सपर्सन्स हियर विल से कि oh, he is not a Shankaracharya, his title is disputed. Then let me just ask them, why did Eknath Shinde, the CM under the NDA alliance, invite the same very gentleman as a state guest in Maharashtra and called him a Shankaracharya? Why is Keshav Prasad Maurya calling him a Shankaracharya? I'll tell you what the BJP is doing right now. They're doing what you call in the financial markets as hedging. You have some people in the BJP who are going after Swami Avimukteswaranand for the exposes that he's doing against the various BJP governments and their anti-Hindu tench of things, and you have some people saying, oh, ye to hamare bhagwan hai, hum inke kadmon mein jayenge. This is what they're doing. This is the most anti-Hindu party in the history of India. They demolished a hundreds of year old temple to make parking for an RSS office. For heaven's sake, a parking. They have no right to be Acharya Vikramaditya. किसको मंदिर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए. And lastly, on the defense, and lastly, on the defense committee of the parliament, going and visiting the Ram temple in the phase where the world is so unstable, where we don't know how we are to deal with China, Pakistan and the alliances that they're making. I really don't understand of them making visits to temples and अरे सर 2 साल हो गए राम मंदिर को, अभी आप इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी की वजह से कल नहीं जा पा रहे. 2 साल से जब सर्टेनिटी थी तभी चले जाते. I mean, of all the excuses you could have made, Nikhil Jain, that really has to be the most laughable. But yes, about the defense committee. No. No, but as an MP, he could have gone as a member of parliament, as an individual. All of these years, he could have gone for the last 2 years. He could have got any time that he chooses. The vice president has not gone. But he hasn't gone, no. But if you're such a cutter Sanatani that today you are concerned about what is happening to Avimukteswaranand, but all of these years you never thought it was important to go to the Ram Mandir, people begin to see through all of that. But again, आचार्य विक्रमादित्य जी, जैसे कि उन्होंने बोला कि अब एक ये इंप्रेशन बन रहा है. देखिए तीन मुद्दे एंड आई एम अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स. 3 मुद्दे जो लगातार उठाए जा रहे हैं. अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति डैमेज की गई है. अब वो सही है कि नहीं, हमने बार बार दिखाया है कि वो एविडेंस नहीं बेयर आउट होता है कि डैमेज हुआ है. मंदिर तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट में, अब ये पूरा ये भ्रम फैला दिया गया है. और अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो खुद ही आगे मोर्चा संभाले हुए हैं. अब ये इंप्रेशन है कि भाई हिंदू भी बीजेपी के राज में सेफ नहीं है और संत भी सेफ नहीं है. देखिए जो सिनेरियो क्रिएट, ये सारा सिनेरियो जो क्रिएट किया जा रहा है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है. सबसे पहले तो अगर माघ स्नान की हम बात करें, कि अगर मैं कहूं कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग साइड, पुलिस वाला रोकेगा आपको? पुलिस वाला रोकेगा कि नहीं रोकेगा? और रोकेगा तो उसके लिए आप हंगामा मचाएंगे, छाती पीटेंगे. तो उसके लिए जो भी है, अगर सरकार उनकी बाध्यता डाल रही है, अगर शंकराचार्य को भी सेम लेवल पे रखा जा रहा है, तो उसमें गलती क्या है? इक्वलाइजेशन की बात है, राइट टू इक्वालिटी की बात है, तो सबको बात है गलत किसने किया वो गलत है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए. हर एक को पता है, यहां बैठे भदौरिया जी को भी, यहां बैठे हुए आशुतोष जी को भी पता है कि कौन गलत है. और मुझे बताइए कि औरंगजेब जैसा शब्द उच्चारण किया जा रहा है, बाबर जैसा शब्द उच्चारण किया जा रहा है, कौन था औरंगजेब? औरंगजेब वो था जिसने मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई. और आप कुछ जीर्णोद्धार कर रहे हैं. 250 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो वहां पर वो घाट बने हुए हैं. दे वर बिल्ड अराउंड 250 इयर्स बैक. अगर उसको रीबिल्ड किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं मंदिर तोड़े. मंदिर नहीं तोड़ा है साहब, वो स्टैच्यूज थे जो वहां पे स्टेप्स पे बने हुए थे, वो उनको हटाकर उनकी जगह नया बनाया जा रहा है. देखिए तो सही, आप जब जिस प्रकार से यहां राजनीति करने बैठ जाते हैं, आपको सबको पता है कि किस सनातन पे आघात किसने किया, सनातन को किसने खंड खंड करने का प्रयास किया, पीडीए की राजनीति किसने खोली, डिवाइड एंड रूल किसने किया, कौन कर रहा है, बांटने का काम कौन कर रहा है, अंग्रेजों के बाने के बाद भी बांटने का काम कौन कर रहा है. मुझे बताइए पिछले 10 सालों के अंदर हर एक को खाना मिला कि नहीं मिला? अरे आशुतोष, अरे सुनिए साहब, खाना मिल रहा है. मुझे बताइए, एक मिनट सुनिए. कोरोना की वैक्सीन सबको मिली. जो आज 5 रुपए की थाली अटल दी जा रही है, वो सबको दी जा रही है. क्या वो आई कार्ड देखा जा रहा है पहले? मुझे बताइए कि क्या जिनको पूरे देश में खाना बांटा जा रहा है. Okay, I'll come back to the topic. Let's come back to the topic. Ashutosh ji, you know, he is demanding respect, but he is not treating others with respect. अब जब उन्होंने औरंगजेब जैसा शब्द इस्तेमाल कर लिया है for the chief minister, he's taken a political position. देखिए पद्मजा, एक चीज मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता क्यों नहीं है? आते, योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करते, शंकराचार्य पे वो सारी बातें कहते हैं जो उनकी सरकार कह रही है, क्यों नहीं आ रहे? अब सर इसका जवाब मैं कैसे दूं? I can't answer on behalf of the BJP. That they can decide for themselves. No.
No, no. Ideally, this is a topic on which the BJP should come and openly defend Yogi Adityanath. But BJP is not coming out openly and defending Yogi Adityanath. That means there is something internally wrong. Or maybe they don't want to say anything controversial about Avi Mukteshwaranand out of respect for him. Padmaja, Maybe they respect him so much they don't want to say things about him. My sources are telling me that the top leadership of the RSS and the top leaders of the BJP are very uncomfortable with this situation and they want this crisis to be settled soon because they don't want Shankaracharya to be disrespected publicly and people asking questions whether you are Shankaracharya or not. Whether you should be banned from entering into this. This is not creating a good image about the BJP which talks about Sanatan. Yogi Adityanath on this particular issue is lonely in the BJP. But sir, do you think it is okay for Avi Mukteshwaranand to say that Yogi or Modi aaj ke Aurangzeb hai? For him to make such statements, is this not outright political? Is he not acting as a front for the opposition and giving them ammunition? See, whether he's acting as a opposition or not, that's a different thing. But he is making a political statement. But he's known for making political statements. So this is a political Even his Guru fight. Swami Swarupananda also used to make political statements. Exactly, and he's getting a political response from Yogi Adityanath. He's behaving like a politician. He's getting a political reply. But as a citizen of the country, he has every right to have an opinion on many topics. Like, But sir, he's not speaking as a citizen. He's speaking as the Shankaracharya. आज जो वो कह रहे हैं मेरी पालकी को जाने देते क्योंकि मैं शंकराचार्य हूं. Not because उनके उपाध्याय जी उनका नाम है. He said because I am Shankaracharya, I deserve this privilege. And if he's saying this, is he behaving like a Shankaracharya? Is he behaving like a politician? You know Padmaja, when long back, when the Shankaracharya Kanchi Kamakoti, Janam Saraswati was arrested, whole BJP and the RSS came out openly and supported him, fought for him. Why today the BJP is not coming out openly and supporting Yogi Adityanath? That's my question. But that sir, answers the whole thing. What was Shankaracharya Kamakoti arrested for? Not for taking a political position. Not for saying that I am going to... Sorry? He was arrested for murder of Shivraman. Exactly. But that was seen as a political witch hunt. And in this... So for such a heinous crime, later he was absolved. Exactly. But why the BJP is not coming out openly and supporting Yogi Adityanath or Shankaracharya openly? Why the BJP is not taking a position? Okay. Because it is making them uncomfortable. All right. Karan Verma, do you think that this is a self-goal where you have essentially made it easy for the opposition? Karan, may I just get 5 seconds? 5 seconds. Just a second. Let Karan Verma, I'm coming back to you. Can I please speak? I mean, yeah. You know, on the contrary, Padmaja, what Ashutosh ji just said shows the objectivity of the BJP. It shows that yes, you can be a sant, but you still cannot be above the law. I remember Ashutosh ji and so many others from the other side always used to say कि अरे ये तो अब सनातन की ओर है, संत जो चाहे कर सकें, they will enjoy unfettered power. Today this question has been answered that even a sant, even ऋषि दुर्वासा by the way, जो आशुतोष जी कह रहे हैं, उस जमाने में भी क्या बोला जाता था कि अगर एक संत गलती करे तो 4 गुना बड़ी दंड होना चाहिए. Because sons are placed on that pedestal that they are not even allowed a single mistake. They set an example for a society. That is what Yudhishthir also said at that point of time. So if anything, BJP set a right precedent and they don't want the tensions to be ratcheted up. That's why probably they're not coming on these debates and that's why there's also a reach out towards him. But reach out doesn't mean you can come up with policy statements and mislead the people of this country. Say that I am above the law. Say that इनको दिखता नहीं है to Ram Bhadracharya ji. Anurag ji. Kind of insensitivity and callousness cannot be entertained. At the same time, the BJP is trying to make amends. Of objectivity. आशुतोष जी की बात को आगे बढ़ाता हूं. आशुतोष जी ने बिल्कुल सही, मैं पूरे दिन से ही पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे? क्या वो बचाव नहीं करना चाहते? उनको करण वर्मा की जरूरत पड़ गई? अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करण वर्मा को भेजेंगे कि हम नहीं जा रहे, करण वर्मा चले जाओ, आप हमारी मदद करो जाके. तो करण वर्मा सुन लीजिए, आप बीजेपी की मदद करने तो आए हैं, लेकिन बीजेपी भी आपको अपना नहीं मानेगी क्योंकि वो इस यहाँ पे वो ऐसा स्टैंड लेना ही नहीं चाहती कि वो संतों के साथ खड़े हो जाए. ना वो यहाँ सरकार के साथ खड़ा होना चाह रही, ना संतों के साथ खड़ा होना चाह रही है. अब वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं स्टैंड क्लियर कर रहे हैं भाई? आप स्टैंड क्लियर, यहाँ पे स्टैंड क्लियर. अरे वो कानून के साथ खड़े हैं भाई. अरे बोले कानून के, आके बोले डिबेट में. अरे मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो ना. आपकी इनकमिंग बंद है. थोड़ी प्रवक्ता हो बीजेपी के, आपकी इनकमिंग बंद हो रखी है. मैंने क्या कहा? कानून के ऊपर कोई नहीं है
है, चाहे वो संत भी हो। आदरणीय संत भी कानून से ऊपर नहीं है, उनका सम्मान पूरा होगा, इसीलिए लड़ाई नहीं होगी, इसीलिए टेंशन बढ़ेगी नहीं। मतलब आप संत का बाल पकड़ के खींचेंगे, चोटी पकड़ के खींचेंगे? You know, I never thought I'd live to see the day when there is so much concern about the respect of sons, about the state of the BJP, about why BJP is not sending its spokespersons, and more importantly about whether Yogi Adityanath is supported by his party or has he been isolated. And all of this concern coming from whom? From the Samajwadi Party and Congress. But I think the great upshot of this entire controversy is that every party right now is trying to prove themselves a bigger Sanatani than the next one. That I think is win-win for everyone. I'm completely out of time, Nikhil Jain. Sorry. Thanks very much, all gentlemen, for joining us, because joining us now also is Jagat Guru Rambhadracharya. All right, let's go straight across to him. Rambhadracharya जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए यहाँ एनडीटीवी पे। आज कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया है योगी जी ने। आपको क्या लगता है कि ये किसके बारे में वो कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? कौन है ये कालनेमी? योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेहभाजन हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें यदि कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और जिसके लिए काल ने उन्होंने कहा ना, वो व्यक्ति तो इतना धृष्ट है, उसने मेरे लिए कह दिया कि वे विकलांग हैं, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं, उसको स्वयं ज्ञान नहीं। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। सोचिए बाप, कोर्ट में अभी प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन ये रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। लेकिन जगत गुरु जी, अभी मुक्तेश्वर जी ने तो साफ साफ कहा है कि आप उनका बचाव इसलिए कर रहे हैं, योगी जी का बचाव इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी के बचाव में आप इसलिए उतरे हैं क्योंकि आप उनके मित्र हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप जानबूझकर सरकारी फायदे लेने के लिए योगी सरकार का बचाव कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध में बोलूंगा, जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा व्यक्ति उसके विरुद्ध में बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना है कि गंगा स्नान करने क्या वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें, कहाँ शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को यह हक है कि वो पूछें अभी मुक्तेश्वर आनंद जी से कि वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं? उसको लेकर के भी अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने आपत्ति जताई है कि योगी जी को पूछने का क्या हक है। बिल्कुल नहीं सिद्ध है। इस गद्दी पर हठात बैठे हैं, कोर्ट में भी इसका प्रकरण सिद्ध कैसे हो गया उनका? शंकराचार्य बनने के लिए तीन पर भाष्य लिखने पड़ते हैं, गीता पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर। जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है उसमें संत समाज के बीच में ही एक तरीके से दरार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के पीछे खड़े हो गए हैं, कुछ योगी जी के साथ खड़े हो गए हैं। तो फिर क्या पूरा संत समाज एक तरीके से बटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? न, ऐसा नहीं है बेटी। संत वर्षित संत नहीं हो गया, संत वर्षित असंत हो गया है। संत से लड़ता ही नहीं, संत शास्त्र के विरुद्ध करता ही नहीं। इन्होंने जो किया है वो शास्त्र के विरुद्ध किया है, मर्यादा के विरुद्ध किया है, इसलिए इनको दंड मिला है। संत उसे कहते हैं जो सात्विकता से रहता है, जो मर्यादाओं का पालन करता है। सब संत सुखी विचरंत मही, संत का लक्षण शास्त्र ने किया है। अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा, जिनको देखकर संत होता है। एक संत गंगा जी सब लोग पैदल जा रहे हैं, तुम जा रहे हो अपने वाहन पर बैठ करके। एक कौन संत जो अपना अहंकार इतना नहीं समाप्त करता। संत तो अहंकार को समाप्त करता है। इन्होंने कब अपने अहंकार को समाप्त किया?
रामभद्राचार्य जी, अभी कुछ ही घंटे पहले अविमुक्तेश्वरन जी ने हमसे बात की थी। उन्होंने कहा कि योगी जी कालनेमी तो कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि वहां पर जिस तरीके के इंतजाम किए गए थे वहां पर किस तरीके की अव्यवस्था थी। ये भी तो बात बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, उन्होंने नहीं फैलाई कोई तो। अब आप बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो, वो ये अनुमति देगा क्या कि तुम गंगा जी के तट तक अपने वाहन से जाओ? गंगा जी के पास तो पैदल चल के जाना चाहिए ना। एक कौन सी अव्यवस्था हो? अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, और इन्होंने फैलाई क्या? विपक्ष ने पैसा देकर इनसे फैला बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहां लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी पालकी की पूजा करनी है। बिल्कुल जो सरकार ने किया सो विचारित किया है, अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इतने किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जो पूरी अव्यवस्था फैलाई गई है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से फैलाई गई है और विपक्ष से पैसा लेकर के अव्यवस्था फैलाई गई है। एक बहुत बड़ा आपने एक वक्तव्य किया है अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ, लेकिन अब इसकी जांच करनी चाहिए। अगर ये जांच होगी कुछ निकल करके आएगा, लेकिन अभी जो जिस तरीके का नोटिस पे नोटिस उनको दिया जा रहा है उसको लेकर के कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भी एक गलत चीज है कि बार बार उनको 48 घंटे में 2 नोटिस दे दिए गए हैं। एक तरीके से उनको धमकाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आप बताइए, जितने कुंभ आए, अर्ध कुंभ आए, कोई भी व्यक्ति पालकी से क्या गंगा जी के अंतिम सीढ़ी तक गया? इनको यही नहीं कहा गया था कि पुलिस ने कहा था अब 50 मीटर रह गया, अब आप पालकी छोड़ दीजिए। तो क्या पालकी से गंगा जी के प्रवाह में जाएंगे नहाने के लिए? मैं स्वयं संप्रदाय का आचार्य हूँ और साधारण जगत गुरु नहीं। इनसे पूछिए इन्होंने किस प्रभाव से लिखे। मैंने अब तक 375 पुस्तकें लिखी, सोचिए बात। और मुझको ये कहते संन्यास लेने का इनको अधिकार नहीं। ये अधिकार दिलाने वाले हैं क्या मुझे? तो इन्होंने स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किया है। कोई भी संत आज तक पालकी पर बैठकर गंगा जी के तट तक नहीं गया, इनके गुरु जी भी नहीं गए। लेकिन अगर अव्यवस्था फैलाई भी गई है तो जो नोटिस भेजा गया है उनको, अभी वो कह रहा है कि अगर आपने 24 घंटे में जवाब नहीं दिया और अगर आपके जवाब से संतुष्ट हम नहीं हुए तो मेला क्षेत्र में आने पे ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या एक स्वामी के ऊपर, एक शंकराचार्य के ऊपर प्रतिबंध लगाना इस तरीके से सही है? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहां लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी पालकी की पूजा करनी है। बिल्कुल जो सरकार ने किया सो विचारित किया है, अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इतने किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's become quite clear from what you've heard over the last 24 hours that the battle lines have well and truly been drawn, and in this saffron fight, who will come out on top with the trading of charges, name calling now out in the open, with Avimukteswaranand also being put on notice. Will he ultimately be banned altogether? We'll keep a close watch. For the time being though, thanks very much for joining us. Time for a break.